السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے بت توڑے تو شیطان انہیں دیکھ رہا تھا، اور پھر شیطان نے جا کر اس قوم کو کیسے ہیلے بہانے سے کیا کیا باتیں بتائیں، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے انگوٹھے سے دودھ اور شہد پلاتے تھے۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو ان کو ایک غار میں لے گئیں، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دن کے وقت وہ چھوڑ آیا کرتی اور پھر شام کو جاتی ان کی خیر خواہی کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ تو آپ جب جاتی تو دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بہت چھوٹے شیرخوار بچے تھے تو کھیل رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دونوں انگوٹھوں سے، ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک انگوٹھے سے شہد ان کو پلایا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار کا منہ خود بخود ایک پتھر سے بند ہو جایا کرتا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ان کی خدمت کے لیے تشریف لے جاتی تو غار کے پتھر کو ہٹا کر اندر تشریف لے جاتی، اور اللہ کے حکم سے غار کا منہ خود بخود بند ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں، اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ کوئی ستاروں کو، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو پوجتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ ہوئے غرض آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا لوں، مورتیوں پر میں سے یا ستاروں میں سے، چاند یا سورج میں سے۔ تو وہ پہلے تو شرمندہ ہو چکے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض ہو گئے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارے کو اپنا رب بنایا، لیکن کچھ دیر بعد وہ غروب ہو گیا۔ تو سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات اور دن، سورج اور چاند ان کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ جب اس نے سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بری ہوں، بیزار ہوں۔ بے شک میں اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تم خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میرا پروردگار جو کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی مجھے ان بتوں کی پرواہ نہیں ہے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ وہ کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ سنتے سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ اللہ کی مخلوق اور اس کے حکم کے پابند ہیں، جیسے ستارے وغیرہ، یا وہ بت جو تمہارے تراشے ہوئے بنائے ہوئے ہیں جیسے پتھر کی مورتیاں۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25 میں اللہ کا ارشاد ہے، اور ابراہیم نے کہا کہ جو تم نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو یہ دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے ہے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51-70 میں اللہ کا ارشاد ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا یہ مورتیاں ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں ہیں۔ قوم نے جواب میں کہا کہ کیا تم ہمارے
पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो? तो इब्राहीम ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार है जिसने इनको पैदा किया, और मैं इस बात का गवाह हूँ और इसका कायल हूँ। और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूँगा। फिर इब्राहीम ने इनको तोड़कर रेसा रेसा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को ना तोड़ा ताकि वो इसकी तरफ रुजू करें। कहने लगे कि हमारे बुतों के साथ ये मामला किसने किया है? वो तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहीम कहते हैं। वो कहने लगे कि इसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो देख लें जब इस बड़े बुत ने क्या किया होगा। अगर ये बोलते हों तो इनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिए और फिर हज़रत इब्राहीम कहने लगे कि तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं। इब्राहीम ने कहा कि फिर तुम खुदा को छोड़कर ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो जो ना तुम्हें फ़ायदा दे सकें और ना नुकसान। तुफ है तुम पर और इन पर भी जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तब वो कहने लगे, अगर तुम्हें इससे अपने माबूदों का इंतकाम लेना है, कुछ करना है, तो इसको जलाकर खाक कर डालो और अपने माबूदों की मदद करो। हमने हुक्म दिया कि ए आग सर्द हो जा और इब्राहीम पर सलामती बन जा। और इन लोगों ने बुरा तो इनका चाहा था, मगर हमने इन्हीं को नुकसान में डाल दिया और उनको नाकाम बना दिया। और आज मुफस्सरीन तफसीर में यूँ भी लिखते हैं कि उनमें से अक्सर लोग नजूमी थे, इस वास्ते इनके दिखाने को तारों की तरफ देखकर कहा कि मैं बीमार हूँ, यानी मैं अनकरीब बीमार हो जाऊँगा। चूँकि वो लोग ईद के रोज़ शहर से बाहर जाते और बड़े मेले में जाके मैदान में बुतों की पूजा करते थे। ये इन लोगों का आबाई दस्तूर था जिसको करना वो नहायत ज़रूरी समझते थे, और अपने बुतों के माबूदाने बातल को छोड़ जाते। बस बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों के चले जाने के बाद एक तीर लेकर बुतखाने में चले गए और आपने वहां जाकर सब बुतों के हाथ पाँव को तोड़ ताड़ कर टुकड़े टुकड़े करके एक सबसे बड़े बुत हबल की गर्दन पर इस तीर को रखकर बुतखाने से निकल आए। शैतान मलून ये हाल देखकर इस बड़े मैदान में गया जहां वो काफिर लोग जश्न मना रहे थे। शैतान मरदूत ने इन काफिरों के पास जाकर रोना चीखना शुरू कर दिया। शैतान ने रोते हुए कहने लगा कि तुम्हारे माबूदों के हाथ तोड़ ताड़ कर उन्हें ज़ेरो ज़बर कर दिया गया है। ये सुनते ही वो काफिर मरदूत सब बहुत हैरान और परेशान होकर दौड़े अपनी सवारियों की तरफ और चाहा कि उन पर सवार हो जाएं। लेकिन जो ही वो अपनी सवारियों के पीछे दौड़े, उन्होंने चाहा कि जल्दी से सवार हों, लेकिन उनकी सवारियों के जानवरों ने भागना शुरू कर दिया और उनके हाथों में ना आए। तब परेशान होकर पैदल ही वो शहर की तरफ वापस आए और सीधे अपने बुतखाने की तरफ चले गए। और वहाँ जाकर जब उन्होंने अपने बुतों के ये हाल देखा तो बहुत ज़्यादा अफसोस और फिक्र में मुब्तला हो गए और कहने लगे, किसने किया है हमारे बुतों के साथ ये सब कुछ, और वो जालिम है। और आपस में मशवरा करने लगे। तो चुनाचा ये ख़बर बादशाह नमरूद तक भी पहुंच गई और वो भी ये कैफियत सुनकर हैरान और परेशान हुआ। उसने अपनी रियाया में से जो संजीदा लोग थे इन सबको तलब कर लिया ताकि कोई उनसे मशवरा कर सके और इस मुजरिम को कि जिसने हमारे बुतों के साथ ये नाज़ेबा हरकत की है उसे सज़ा दी जाए। चुनाचा बादशाह नमरूद ने बड़े बड़े अपनी कौम के सरदारों को बुलाया और खूब मशवरे किए। बिलाखिर उसने ये तय किया कि एक आम दरबार मुनक्कद किया जाए और जब तमाम लोग इस दरबार में हाजिर हो जाएं, फिर इस नौजवान को भी तलब किया जाए और इससे बाकायदा मुकालमा किया जाए ताकि वो लाजवाब होकर हमारे माबूदों के साथ अच्छा बर्ताव करे।
चुनाचा बादशाह नमरूद ने दरबार मुनक्किद करने की तारीख मुकर्रर कर दी और आम मुनादी करा दी गई और इस दरबार में हज़रत इब्राहीम को तलब कर लिया गया। जब दरबार शाही की तारीख आई और इस कौम ने अपने बादशाह वक्त के हुक्म की तामील की और वो सब के सब दरबार शाही में हाजिर हो गए। फिर जब मजमा कसीर हो गया तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया और हज़रत इब्राहीम को सारे मजमे ने और ख़ुद बादशाह नमरूद ने भी बहुत धमकाया, डराया और कहने लगे, ये काम हमारे बुतों के साथ तुमने ही किया है ना? ए इब्राहीम, अफसोस है तुमने सभी को तोड़ डाला, किसी को भी नहीं साबित रहने दिया। आखिर इसकी क्या वजह है? वो बातें दरबारियों की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनी और फिर कहने लगे, मैंने तो इन्हें को नहीं तोड़ा। ये जवाब हज़रत इब्राहीम का जब सुना तो करीब से एक आवाज़ आई, मैं गवाही देता हूँ ए इब्राहीम, एक दिन तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे बुतों की फ़िक्र करूँगा, शायद तुम ही ने हमारे मबूदों को तोड़ डाला है। फिर काफिरों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, सख्त लहजे में कहने लगे, तुमने हमारे बुतों के साथ क्या सलूक किया है और हम लोग ज़्यादातर गुमान भी तुम पर ही करते हैं। ये लोग बराबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इल्ज़ाम दे रहे थे और चाहते थे कि हज़रत इब्राहीम खुद अपनी ज़बान से अपने जुर्म का इकरार कर लें, लेकिन ये काम बज़ाते खुद हज़रत इब्राहीम का नहीं था, बल्कि ये काम तो अल्लाह ताला की तरफ से था, जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा था और वो अपने बातिल अकायद पर नादिम और पशेमान और शर्मिंदा हों। चुनाचा दरबार इलाही से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप इन लोगों से कह दीजिए, क्यों नहीं इतने बड़े माबूद से दरियाफ्त करते हो कि ये जो सबसे बड़ा बुत है और इसके कंधे पर ये जो कुल्हाड़ा पड़ा है, पूछो इस बुत से, शायद इस बुत ने इन सब को तोड़ा हो। अगर ये बोलता है तो ये तुम्हें जवाब ज़रूर देगा। इस पर सारी कौम शर्मिंदा हो गई और वो कहने लगे कि ए इब्राहीम, बुत भी कभी बोलते हैं, वो ना तो सुनते हैं, ना हरकत करते हैं और ना देखते हैं। ये मायूसी का जवाब जब हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम से सुना तो आपने अपनी सारी कौम से कहा, ए मेरी कौम, जो माबूद बात नहीं करते, ना देखते, ना सुनते हैं, इनको खुदा क्यों कहते हो और इनकी इबादत क्यों करते हो? ये बात कैसी अक्लमंदी के ख़िलाफ़ है, ज़रा गौर तो करो। ये जवाब हज़रत इब्राहीम का सुनकर सारी कौम ने अपना सर झुका लिया और आपस में कहने लगे, ये नौजवान तो सच कहता है और बातें इसकी बिल्कुल सही हैं। वो शर्मिंदगी से बोले कि और उन्होंने अपने सर नीचे कर लिए और कहने लगे कि ए इब्राहीम, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये नहीं बोलते और ना ये सुनते हैं, लिहाजा जब इन काफरों से कोई दलील न बन सकी और हर बात में वो नाकाम और लाजवाब हो गए तो मजबूरन इन सरदारों ने हज़रत इब्राहीम को मार डालने की तजवीज़ दरबार नमरूद में पेश कर दी ताकि वो इत्तफाक से मंजूर हो जाए। और चूँकि बादशाह नमरूद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेबाकी और सही जवाब से तंग आ चुका था, लिहाजा इसने इन सरदारों की तजवीज़ को अमली जामा पहनाने के वास्ते दूसरी मजलिस तलब कर ली और ये तय पाया कि हज़रत इब्राहीम को इस तरीके से मारा जाए ताकि हमें आए दिन की शर्मिंदगी और नदामत से निजात हासिल हो। कुछ ही दिन गुजरे थे कि बादशाह नमरूद की तरफ से कौम के सरदारों की तलबी हो गई और इसमें बहुत जल्दी के साथ इस तजवीज़ पर कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मार डालने के मुतल्लिक तय की गई थी, इसको किस तरह अमली जामा पहनाया जाए। हर सरदार ने अपनी अपनी राय दरबार शाही में पेश की और तमाम कौम के सरदारों ने हर तजवीज़ पर नहायत गौर खोज किया, लेकिन अभी सही नतीजा पर ना पहुंच सके थे। एक बहुत ही बूढ़े और ज़ईफ़ सरदार ने एक तजवीज़ पेश की कि ऐसे मुजरिम को आम लोगों के सामने सज़ा दी जाए ताकि कौम का कोई दूसरा फ़र्द इस किस्म की कोई हरकत न कर सके। इसने कहा कि मेरी समझ में तो ये आता है कि सारी कौम लकड़ियों को इकट्ठा करे और बहुत बड़े मैदान में लकड़ियां जमा की जाएं। हर शख्स इस काम को यानी लकड़ियां जमा करने के काम को अपना कौमी फ़र्ज समझे और थोड़ी थोड़ी मेहनत और मुशक्क़त उठाकर लकड़ियां जंगल से लाकर इस मैदान में जमा करता जाए जहां इकट्ठी की जाएंगी। और जब लकड़ियां काफ़ी तादाद में जमा हो जाएं तो इन
लकड़ियों को आग लगाकर जला दिया जाए। जब आग पूरे शोलों में तब्दील हो जाए और शदीद शोला मारती हो तो उसी वक्त इस नौजवान को किसी बुलंद जगह से बजरिया मंजनीक इसमें फेंक दिया जाए ताकि ये शख्स दोबारा ना निकल सके और तमाम कौम को इबरत हासिल हो। सारी कौम इस ज़ईफ़ुल उमर शख्स की बात पर मुत्तफ़िक हो गई और हज़रत इब्राहीम के वास्ते उन्होंने यही इलाज सोचा और सारी कौम ने बैक वक्त आवाज़ में कहा कि इस नौजवान को शोला मारती हुई आग में जलाओ और अपने माबूदों की मदद करो। अगर तुम ये चाहते हो कि हम अपने माबूदों को बचाएं तो फिर सिर्फ यही एक तदबीर रह जाती है, चलो जंगल चलें और वहाँ से जितनी हो सके लकड़ियाँ लाएं ताकि लकड़ियाँ कसीर तादाद में जमा हो जाएं और जो तजवीज़ की गई है उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। उन लोगों ने कहा कि बनाओ इसके वास्ते एक इमारत यानी 4 दीवारी उठाओ और चारों तरफ से इसमें आग के ढेर में बस इसको जला कर खाक कर दो। बादशाह नमरूद ने इस 4 दीवारी बनाने का फौरी हुक्म दे दिया और इसकी पैमाइश का अंदाज़ा भी इन बनाने वाले कारीगरों को दे दिया गया ताकि पैमाइश के मुताबिक 4 दीवारी तामीर कर दी जाए और 4 दीवारी की इमारत ऐसी बनाओ कि इसका अहाता 12 कोस का हो और इसकी ऊंचाई 100 गज की हो। बस एक ऐसी दीवार इसी के मुताबिक तैयार कर दी गई और इसके बाद नमरूद ने हुक्म दिया कि सारे मुल्कों में मनादी करा दी जाए कि मुल्क भर में जितने हमारे दोस्त हैं लकड़ियां काट कर यहाँ लाकर जमा कर दें। बादशाह नमरूद के इस हुक्म को पाते ही हर शख्स ने अपने हौसले के मुताबिक लकड़ियां लाकर इस 4 दीवारी के अंदर जमा करना शुरू कर दी। फिर जब इसमें आग लगा दी गई तो शोला इस कदर ऊंचा हुआ कि वहाँ से 3 मील के फासले पर जो जानवर उड़ते थे इसकी तपिश से जल भुनकर खाक हो जाते। इसमें सब काफिर शामिल थे और खुश थे कि इब्राहीम को इस आग में डालेंगे। इतने में इब्लीस लानतुल्लाह ने आकर काफिरों को हिकमत बताई और बोला, एक ऊंची जगह तुम सब मिलकर बनाओ। उन्होंने मंजनीक के कारीगरों को बुलाया और इन कारीगरों ने मंजनीक तैयार की और इस मंजनीक को उर्दू ज़बान में गोफन भी कहते हैं और इससे पहले कभी किसी ने ये मंजनीक नहीं बनाई थी बल्कि कभी किसी ने देखी भी नहीं थी। ये चीज़ इब्लीस अलैहि लानतुल्लाह ने दोज़ख में देखी थी और ये ख़ास तरीक़ा दोज़खी के वास्ते अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है क्योंकि जब दोज़खी को दोज़ख में डाला जाए तो इसी मंजनीक में रख के डाला जाएगा। जब हज़रत इब्राहीम को इस मंजनीक में रख कर इस शोला मारती हुई आग में डाला गया और मलऊन ने मंजनीक को दुरुस्त करके जब ठीक ठाक किया तो इसी वक्त दरगाह इलाही से आवाज़ आई, ए जिब्राईल आसमान के सब दरवाजे खोल दो ताकि सब फरिश्ते खलीलुल्लाह को देखें कि दुश्मन के हाथ में हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि दुश्मन खुदा हमारे खलील को किस तरह जलाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान के सब दरवाजे खोल दिए ताकि तमाम मलाइका ये हाल देख सकें और कहने लगे कि या इलाही, इस मैदान में एक ही मोहिद है जो तेरी इबादत करता है और उसकी ज़ुबान पर हर वक्त तेरा नाम जारी रहता है। इसको दुश्मन के हाथ में तूने डाला है और वो इसको आग में जला डालेंगे। तो अल्लाह ताला का क्या हुक्म हुआ और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्या तदबीर बताई कि अल्लाह ताला क्या करने वाला है और जो अल्लाह जानता है वो कोई नहीं जानता। तो इंशाल्लाह बाकी डिटेल्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी और अल्लाह ताला आपके घरों में और उम्मत मुसलमान के हर घर में सुकून और अमन कायम रखे। अल्लाह ताला सबके घरों में रिज़्क़ की फरावानी नसीब फरमाए और अल्लाह ताला रहमतें और बरकतें उम्मत मुसलमान पर निछावर करे। अल्लाह ताला आपकी और उम्मत मुसलमान के दिलों की सबके दिलों की जायज़ और मीठी मुरादें पूरी फरमाए और जो लोग हमसे पहले जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और निजात फरमाए और हम लोग जो ज़िंदा हैं अल्लाह हमें हदायत पर कायम और दायम रखे। आमीन सुम आमीन। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।